پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک، جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ خاکسار آج شب پھر آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج پھر میری زندگی میں یہ انمول اور خوبصورت لمحات میسر آئے کہ پرستاروں کے ذریعہ کی جانے والی پرستش، دعا گو لوگوں کے ذریعہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، اور اس آن لائن میٹنگ کے پریزائڈ کیے جانے کے وسیلہ سے برکت پانے والا ہو سکوں۔ اور اب میں خدا کے کلام کو لے کر آپ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پاک روح ہمارا استاد ہے، اور آپ جتنے بھی اس وقت خاص اسکائپ پر ہمارے ساتھ آن لائن ہیں یا فیس بک کے کئی پیجز پر، ایون یوٹیوب چینل پر اس کلام کو سن رہے ہیں، اور واٹس ایپ گروپس میں بھی، میں یقین دلاتا ہوں کہ آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے ایک ایک سے ہم کلام ہوں گے، اور کوئی بھی خداوند کے حضور سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ پس لازم ہے کہ ہم اپنی توجہ خداوند کے کلام کی طرف لانے والے ہوں، اور دل سے یہ دعا کرنے والے ہوں، خداوند مجھ سے بولیے اور کلام کیجیے، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ زبور کی کتاب سے زبور 102 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، 102 اور گزرے کل ہم نے پہلی 7 آیات پر خدا کے ایک اور خادم کے وسیلہ سے کلام سیکھا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ مل کر 8 آیت سے لے کر 12 آیت تک سیکھوں گا۔ وقت نے اجازت دیا تو پھر دیکھیں گے، لیکن ہم 8 سے 12 تک دیکھیں گے۔ اس دوران میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ زبور 102 کے اوپر یہ ٹائٹل نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا اور کب لکھا ہے، اس لیے میں کوئی اپنا خیال پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ کون ہے انسانی مصنف کہ پاک روح نے اس کے ذریعہ سے اس زبور کو لکھوایا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کلام خدا کے روح کی تحریک سے لکھا گیا، انسانی مصنف بھلے کوئی ہی کیوں نہ ہو، اور ہر زمانے کے مومنین کے لیے سارے خدا کے کلام میں، لیکن چونکہ ہم اس زبور کا آج مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے میں کہوں گا اس کے ذریعہ سے خداوند کلام کرتے ہیں۔ اس زبور میں ہم ایک دکھی، پریشان، غمزدہ، نڈھال، افسردہ مومن یعنی ایماندار کی دعا کو دیکھتے ہیں جو وہ رب العزت کے حضور کر رہا ہے۔ مختصر طور پر میں یہ کہتا چلوں کہ اس زبور کی پہلی 11 آیات میں زبور نویس اپنے دکھ اور اپنے کرب اور اپنے غم اور افسردگی کا آئینہ دکھاتا ہے، اور پھر 12 آیت سے لے کر 22 آیت تک ہم
उसको ऊपर की तरफ, आलम बाला की तरफ निगाहें करते हुए देखते हैं कि मेरा बहाल करने वाला खुदावंद है, बहाली उसकी तरफ से है, इसलिए मेरा तवक्कल खुदावंद पर है। और फिर 23 आयत से लेके आखिरी आयत यानी 28 आयत तक वो इस बात का बयान करता है कि इंसान कमजोर है, लेकिन खुदा जोर आवर और कुव्वत वाला है। ये इस पूरे जबूर का खलासा था। आज जहां तक मैं मुतालिया कर रहा हूं, यानी 8 से 12, आने वाले कल हम एक और खुदा के ममसू के वसीला से उसके बाद की आयात पर सीखेंगे। लेकिन यह सिर्फ एक खाका था इस जबूर का जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। इस दुआ से मुताल्लिक मुफस्सरीन और उलमा का ख्याल यह है कि यह शख्स जबूर नवीस खुदा के हुजूर शिकवा के तौर पर, शिकायत के तौर पर, गिला के तौर पर एक दुआ गुजरानता है, लेकिन इसका तवक्कल मुकम्मल तौर पर खुदावंद पर है, क्योंकि बिगड़ी बनाने वाला खुदावंद के अलावा और कौन है। हम अपने शख्सी और इर्द गिर्द के हालात को देखकर, शायद फैमिली लाइफ को देखकर उलझनों और परेशानियों में अपने आप को देखकर हम भी नढाल हो जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं, गमज़दा होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन मुबारक है वो लोग कि इन तमाम दुखों और तकालीफ के होने के बावजूद हमारा तवक्कल खुदावंद अपने खुदा से हो, क्योंकि यह नेचुरल बात है कि हम ईमानदार हों या ना हों, हमारी जिंदगी में ये तकालीफ और दुख आते हैं। लेकिन मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदावंद अपने खुदा पर है। इस जबूर में, ये जो जबूर नवीस है, वो कई एक ऐसे जुमले या फ्रेजिस या अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐसे ख्यालात इस्तेमाल करता है जो अहदे अतीक में अय्यूब के सहीफे से लिए गए हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हमने अय्यूब की किताब का मुतालिया किया है, कि बुजुर्ग अय्यूब ईमान के एतबार से उनका ग्राफ कितना बुलंद था, लेकिन हालात के सबब से वो इंतहाई कर्ब और दुख में थे। और हम देखते हैं कि अहदे अतीक में अगर किसी का कोई दुख था, कोई दुखी हुआ, गमज़दा हुआ, अफसरदा हुआ, तो अय्यूब इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अगरचे इस जबूर में मैं अपनी और आप अपनी सूरत को भी देखेंगे, लेकिन जिसने यह जबूर लिखा उससे मुताल्लिक उलमा ये बताते हैं कि पॉसिबल है कि जब बाबल के लोगों यानी बाबलियों ने शहर यरूशलेम पर हमला किया, धावा बोला, तो हैकल की भी और शहर यरूशलेम की भी ईंट से ईंट बजा दी, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और इस समा में जबूर नवीस
इस जबूर को लिखते हैं। जब हम कलीसियाई जमाना को देखते हैं तो हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जो कलीसियाई रहनुमाहान थे इब्तदाई कई सदियों तक, वो जब कभी कोई दुख या गम या अफसुर्दगी या मातम का समा होता तो वो 7 ऐसे मजामीर हैं जिनको वो पढ़ा करते थे, और उन मजामीर में से एक जबूर 6 है, दूसरा जबूर 32, तीसरा जबूर 38, चौथा जबूर 51, पांचवा जबूर यही 102, छठा जबूर 130 और सातवां 143, 143। ये वो मजामीर थे जो दुखों और कर्ब और अफसरदगी के आलम में रहनुमाहाने कलीसा पढ़ा करते और गाया करते थे। मैं इन तमाम आयात पर जो गुजरी 7 आयात हैं कुछ कहने से रहा, लेकिन यह कहूंगा कि जो पहली 2 आयात इस जबूर की है वो खुदा की तारीफ के साथ एक दुआ हो रही है, और दुआ का बेहतरीन तरीका भी यही है कि हम एक दम धावा बोल देते हैं, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। क्या ही अच्छी बात हो कि हम खुदा की तारीफ और हम्द से अपनी दुआओं का आगाज करें। तारीफ, हम्द, दूसरे नंबर पर शुक्रगुजारी, और फिर अपनी इल्तिजाएं। और इस जबूर में हम इस खूबसूरत हुस्न को देखते हैं, और वो ये है कि जबूर नवीस खुदा के हुजूर दुआ गो है, लेकिन इस दुआ में खुदा की हम्द और सताइश से वो आगाज करता है। बाद में आप इन आयात को देख सकते हैं। और फिर तीसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में और जिस्मानी हालत की बाबत वो बयान करता है कि मैं किस कदर कमजोर होकर रह गया हूं। अभी नहीं तलावत कीजिएगा, अभी आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, लेकिन जब आप बाद में इस जबूर की इन आयात को तलावत करेंगे तो आपको बुजुर्ग अय्यूब का तजुर्बा क्लियरली वाज़े तौर पर नजर आएगा। और मोमिनीन कलीसा अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है, खा वो अहदे अतीक हो या अहदे जदीद, असरे कदीम या असरे जदीद, इनमें हमें खुदा के लोगों के बड़े तल्ख तजर्बात को देखते हैं कि वो किस कदर गम और दुख और तकलीफ के हालात में रहे। किसी भी खुदा के बंदे की जिंदगी कंफर्ट जोन में नहीं थी। यूं लगता है जैसे वो दार पर ही चढ़े रहे। और खुदा हमसे ये तवक्के करते हैं कि हम दुनिया में रहें और है भी, लेकिन हमारी निगाहें आलमे बाला की तरफ लगी रहे, क्योंकि हमारी कुव्वत और हमारी कुमक और हमारा जोर और हमारी तवनाई खुदावंद ही की तरफ से आती है। जब मैं आयत 8 की तलावत करता हूं, जबूर 102 की 8,
तो अब वो अपने इर्द गिर्द देखता है ज़बूर नवीस और क्या कहता है, मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। दिन भर, पूरा दिन, सुबह से शाम, मेरे दुश्मन मुझे मलामत करते हैं और मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान बेटों और बेटियों, क्या कभी आपको ऐसा तजुर्बा हुआ? मैं नहीं समझता, क्योंकि यहां ज़बूर नवीस अपने तजुर्बा को बयान करता है। वैसे भी कलाम में लिखा है, शरीर लोग रात भर मंसूबे बांधते रहते हैं कि सुबह उठते ही क्या करें। और यहां ज़बूर नवीस बताता है, मेरे दुश्मन सुबह से शाम तक मलामत करते हैं मुझ पर, यानी लान तान, नफरती अल्फाज कसते हैं, मेरा तमस्खर उड़ाते हैं, मुझे ठट्ठे मारते हैं। देखो ते सही, बड़ा खुदा आधा बंदा बंदा पे है। देखो तो मेरे दुश्मन, और दुश्मन ये सिर्फ आम लोग, सिर्फ नफरत और कदूरत रखने वाले ही नहीं होते, ये वो होते हैं जो हमारी जान के खाहां होते हैं। इतनी ज्यादा नफरत की इंतहा। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। और नंबर 2, चूंकि वो मेरे मुखालिफ हैं, वो दीवाना होकर, यानी मजनून, नीम पागल होकर, अपनी होश सुरत में नहीं होते, वो दीवाना वार होकर मुझ पर लानत करते हैं। ओ खुदा करे कि आप पर और मुझ पर दूसरे लोग बरकत की ही दुआ करें, लेकिन जरा तसव्वुर में सोचें कि अगर इस ज़बूर नवीस की जगह मैं और आप होते और हर रोज सुबह से शाम तक लानत और मलामत, दुश्मनी सुनने का इत्तफाक होता, तो हम आहिस्ता 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 डाउन ना हो जाते? ऑफ कोर्स इस वक्त आप जितने भी मेरे साथ इस कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, हम में से कई अपने आप को आज सेम इसी ब्लॉक में फिट पाते होंगे। कई लोग आपकी मलामत करते होंगे सुबह से शाम तक, बुरा चाहना, बद्दुआ। और कई लोग शायद लानत मलामत भी करते हो। वह हम उनके लिए बदला में ये नहीं कहते कि ए होई तुहाडे ते भी होए, नहीं, क्योंकि हम लानत के लिए नहीं, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, और यही मसीही तालीम है। असल में उन लोगों के पीछे उनका कंट्रोल, उनका रिमोट अदन से जो हमारा कदीम दुश्मन चला आ रहा है ना, उसके हाथों में है, जिस सबब से वो इस तरह की हरकत करते हैं। और अगर मसीह खुदावंद इस जगह हूं, तो वो ऐसे लोगों की बाबत क्या कहते हैं यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि उसके से काम करते हो। वो झूठा है, इवन झूठों का बाप, और वो खूनी है। हाउएवर, ये तो उनकी बात हो रही है
जो शायद दूसरे लोग हम पर हमला कर रहे हों, बातों के जरिया भी और मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान देने के जरिया भी। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कहीं हम किसी को लानत मलामत तो नहीं करते? कहीं हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते? कहीं सुबह से शाम तक हम दूसरों की बदबुरियां तो नहीं करते रहते? उनके जख्मों को कुरेदते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मजनून और दीवाने हो गए और खुदा ने जो खिदमत हमारे सुपुर्द की है वो पीछे रह गई और दुनियादारी सबकत ले गई है? सोचने का मकाम है। आयत 9, बहुत कुछ है इन आयात में, लेकिन मैं वक्त की नजाकत से फायदा उठाते हुए बात करता हूं। आयत 9 में ज़बूर नवीस और क्या कहता है? क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई, रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिला कर पानी पिया। ओ हो, आप तसव्वुर करें ऐसे शख्स की इमेज या तस्वीर जो डस्ट में, खाक में, जमीन पर पड़ा हुआ है। यह मॉडर्न एज नहीं था कि हर जगह आपको सीमेंटेड या पक्की मिले या खूबसूरत घास। यह ऐसे शख्स की तस्वीर है जो डस्ट में, मट्टी में, गर्द में पड़ा हुआ है। रब्बुल इज्जत के हुजूर जबीने नियाज है, सरे तस्लीम खम हो गया, सिजदारेज हो गया, और वो मुहावराती जबान में यह कहता है कि मैंने रोटी की तरह राख खाई है। राख, स्वा, गर्द मैंने खाई है। और दूसरे नंबर पर मैंने पानी भी जो पिया उसमें मेरे आंसू मिले हुए थे। वो कितना कर्राता और रोता हुआ होगा इस दुख और कर्ब में कि पानी हर वेले ते बंदा नहीं ना पींदा रहंदा, लेकिन जब पीता था तो लगता है उस वक्त भी उसके अश्क, उसके आंसू उस पानी में गिरते थे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या हमारी हालत ऐसी ही है? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक यहां तक नौबत नहीं पहुंची कि हम रोटी की जगह राख खाएं और पानी भी वो जिसमें आंसू मिले हुए हों। हमारा खुदा हमें प्यार करता है। हां, हमारे ईमान के इम्तिहान के लिए ऐसा मुमकिन है। अयूब का इम्तिहान था, अब्राहम का इम्तिहान था, आमाल की किताब में मुकद्दसीन जो काठ में थे, जेलों में थे, कैद खानों में थे, वो उनका इम्तिहान था। मैं इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूं। मैं नवीद अपनी बात कर रहा हूं। यह एग्जामिनेशन हॉल से मुराद वो नहीं जहां पर पेपर पेन लेकर आप सवाल और जवाब लिखते हैं। इससे मुराद जिंदगी का एक ऐसा स्टेज और मकाम जहां हम खुदा को हमारा इम्तिहान लेते हुए देखते हैं। और खुदा करे
کہ ہم اس امتحان میں 100% مارکس حاصل کریں. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اینی ہاؤ، آیت 9 جو ہے نا، اس میں ہم اس کو اپنے دکھ کا بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر دکھ میں ہوں، اور اس کو گویا ماتم کرتے ہوئے مٹی اوڑھنا، مرثیہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اہل نینوا کی حالت شاید اس سے بہتر ہوئی ہوگی. یہ زیادہ پستی کی بات ہو رہی ہے اس زبور میں. لیکن آیت 10، خدا سے وہ مخاطب ہے 10 اور 11 آیت میں، اور خدا سے کیا کہتا ہے؟ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے. اے خدا یہوہ، یہ آپ کے غضب اور آپ کے قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا. تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا. دیکھیے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، دیکھیے خدا جس کو اپنا بنا لیتا ہے نا، اس کو وہ لگاتا بھی ہے. عبرانیوں کا مصنف کلیئرلی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر وہ لگائے نہیں تو ہم اس کے نہ ہوئے. اور خدا اپنے قہر اور غضب میں ہمیں گھڑتا ہے، ہمیں بناتا ہے تاکہ ہم اس کی صورت پر ڈھل جائیں. کئی ایگزامپلز اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن شکر ہو کہ اگر ہم رائٹ ٹریک پر ہیں، اگر اندر سے آواز آتی ہے کہ واقعی میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں اور ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر یہ گرین سگنل ہے. اور اس گرین سگنل میں ہم یاد رکھیں کہ خطرہ بھی بڑا ہے. خدا پھر ہماری چھانٹی کرتا ہے، ہمیں تراشتا ہے، ہمیں بناتا ہے. اور یہی تو بات یہ زبور نویس کہہ رہا ہے، تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ایسا ہوا، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا. مجھے اور آپ کو بھی اس نے ڈسٹ میں سے، مزبلہ پر سے، خاک پر سے اٹھایا. ہمارا کوئی اس کے بغیر منہ سر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے خون سے خرید کر مجھے اور آپ کو انمول بنا دیا ہے، جن کی کوئی قیمت ہی نہیں. یعنی اتنی زیادہ قیمت جس کو کوئی چکا ہی نہیں سکتا، انمول. اور پھر دیکھیے، تو نے مجھے اٹھایا. خدا آپ کو بھی اٹھاتا ہے اور اٹھایا ہوا ہے. خدا نے مجھے بھی اٹھایا. لیکن کیا جب ہم بیبی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد چک کے مارنے انہوں تلے؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب خدا اٹھاتا ہے ہم بڑے بچوں کو، تو اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں نا، تو پھر خدا ہماری اصلاح کے لیے ہمیں پھر اپنی من مانی پر ذرا چھوڑتا بھی ہے. بعد میں رومیو پہلا باب اور 2 باب آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا،
फिर वापस उसी के पास आ जाते हैं। मेरी वालदा ने भैंस भी रखी हुई थी, गाय भी, और 2 बकरियां भी, और सुबह खोल देती थी, और दिन को वो पूरी जमीन जहां कहीं भी हमारा इलाका था वहां पर चारा खाने के बाद केवल इसके के अंधेरा पड़े वो वापस अपने जगह पर आ जाते थे। खुदा कह रहा है अपनी खुरली च वापस आ जा, वापस आ जा, रात पड़ने वाली है, आ जा मेरे पास, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। क्यों वो वहां आती है? इसलिए कि उनको पता है कि यह वो मकाम है जहां हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी जरूरियात पूरी होती है और हमें किसी तरह की कोई फिक्र वाली बात नहीं है। आयत 11 में वो क्या कहता है? मेरे दिन यानी मेरी जिंदगी, मेरी उम्र ढलने वाले साया की मानिंद है। सूरज है तो साया भी है। जो ही सूरज गरूब हो गया साए भी साथ छोड़ देते हैं, अकेले रह जाते हैं। और यही हकीकत वो कह रहा है, मेरे दिन मेरी उम्र अब ढलने वाले साए की मानिंद है, शाम हो चली, इसके बाद अब और डार्क होता चला जाएगा। मेरी उम्र अब जैसे बर्फ का ढेला सूरज की किरणों से पिघलता और कम होता चला जाता है। मेरी जिंदगी और मेरी उम्र अब कम होती चली जा रही है और मैं घास की मानिंद मुरझा गया हूं, सूख गया हूं। बाज़ौकात मैं इंतहाई कर्ब के आलम में अपने अजीजों को जो मेरे लिए दुआ करते हैं, दर्द रखते और बोझ रखते हैं, कभी कभी बच्चों को भी मैं कहता हूं अब मैं थक गया हूं। यहां पर थकने से यह मुराद नहीं है कि मैं काम से थक गया हूं। खुदा गवाह है, मैं काम से कभी भी नहीं थका, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, जितना भी हो। बाज लोग पूछते हैं थके थे नहीं, मैं कहना नहीं, मैं नहीं थका, और वाकई नहीं थका होता। लेकिन हालात के सबब से, डिप्रेशन और ये इनके सबब से अक्सर औकात हम थक जाते हैं। और बाज़ औकात खुदा के हुजूर, खुदावंद अब मैं थक गया हूं, अब मुझे जवाब दे। यही वो बात यहां पर कह रहा है। और आयत 12, लेकिन तू ए यहोवा, ए खुदा, ए खुदावंद, लेकिन तू ए खुदावंद अबद तक रहेगा। अब किसकी तरफ देखता है? अपने हालात की तरफ नहीं, खुदा की तरफ। लेकिन तू ए खुदावंद हमेशा तलक रहेगा। वो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है। और फिर, और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी, नस्ल दर नस्ल तेरे अजीब कामों का जिक्र होता रहेगा कि तूने अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब कभी आप दुखों की, आजमाइशों की और मुश्किलात की कठाली में या भट्टी में लगे, तो समझें कि यू आर नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड। जो इस तरह की सिचुएशन में है, हर खुदा का बंदा और बंदी कर्ब के आलम से गुजरे और गुजर रहे हैं। दुनिया के अजीम तरीन मसीही मोमन लीडर्स इस कर्ब और इस बियाबान की सेमिनरी से होकर पास हुए
फिर उनके नाम किताब मुकद्दस के मुताबिक कलीसाई तारीख की कुतुब पर रकम है। आए हम अपने ईमान का दामन न छोड़ें, अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करें। कहें, खुदावन आप बुराई से भलाई पैदा करना जानते हैं, मेरे जीवन को नया कर दीजिए। और अगर पाक रूह जाहिर करता है कि तेरी जिंदगी में कुछ काला काला है, तो फिर अभी इकरार करने की जरूरत है। अगर मसीह को अपने दिल की बोट यानी किश्ती पर बैठने के लिए मौका नहीं दिया, तो केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए, दावत दीजिए, खुदावन आइए और मेरे दिल की नाव पर आप सीट संभालें। क्योंकि जब कंट्रोल आपके हाथ में हो तो हम डूबेंगे नहीं। हम दुआ करें, रब्बुल इज्जत, दिल की अथाह गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, और अपने इन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो इन मुख्तलिफ मीडियाज पर आपके कलाम को मेरे साथ मिलकर सीखते हैं, आपकी बरकत और सलामती चाहता हूं। ऐ खुदावन, हम में से वो तमाम जो दुखों की कठाली और भट्टी में लगे हुए हैं, हमारा ईमान कभी भी मुतजलजल ना हो। हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि हमारी कुमक आपसे है। और वो तमाम जिन्होंने अभी तक अपने दिल पर आपको बैठाया नहीं है, पाक रूह उनके दिलों को कायल कीजिए कि मसीहा को दावत दें और वो उनके कंट्रोल को संभाल पाए। ऐ खुदावन, हमारे वो तमाम अजीज जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स लिख रहे हैं, खा वो खानदानी प्रॉब्लम है, खा वो माली प्रॉब्लम है, खा वो ज़हनी तौर पर कोई टेंशन है, खा जॉब नहीं, या हस्बैंड एंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है, खानदान बिखर रहे हैं, या बीमारियां हैं, खा किसी ही किस्म की बीमारी क्यों नहीं, यीशु अल मसीह के कुदरत वाले नाम में हम उन तमाम लानतों को बरकत में बदल देने का हुक्म देते हैं। खुदावन, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ देखते हैं। इस खाकसार खादम की अपने लोगों के बिहाफ पर दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। अजीजों, खुदावन आप सबको बरकत बख्शे और हम फिर मिलेंगे, बशर्ते के खुदावन की रजा हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।